بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو وہ پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال کے ساتھ، آپ کے جمال سے تمام اندھیرے دور ہو گئے، آپ کی تمام عادتیں بہت ہی اچھی ہیں، آپ اور آپ کے آل پاک پر لاکھوں درود و سلام ہوں۔ بے شک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بہترین عملی نمونہ زندگی ہے، اور اس کی روشنی میں ایک مقدس ادارہ اور مقدس سوچ کے حامل افراد نے ایک سوسائٹی کا قیام کیا جس کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور دینی اور انسانی خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی رکھا گیا، جو آج کے دور میں اپنی شہرت کی بلندیوں کی جانب رواں دواں ہے۔ کی انسانیت کی خدمت بے رنگ و نسل سب کے لیے موجود، آخرت میں اپنا مقام بنانے کے جذبے سے سرشار، اس عمل پر اپنی زندگی کے قیمتی پل دوسروں کے لیے وقف کر دینا ایک ایسا عمل ہے جو صرف اپنوں کے لیے ہوتا ہے۔ اس جذبے کے تحت 1983 اور 1984 میں اہل سنت ویلفیئر سوسائٹی کا قیام کراچی کے علاقے ملیر کھوکھرا پارک کے FN ایریا میں ایک چھوٹی دکان کرائے پر حاصل کر کے قائم کیا گیا۔ اسی طرح 1998 انجمن طلبہ اسلام کے طالب علموں اور ہم خیالوں نے مل کر سوسائٹی میں نئی سوچ، نئی جدت اور نیا ولولہ پیدا کیا۔ اس وقت کسی بھی قسم کی ایمبولینس سروس ملیر میں نہ تھی۔ ایمبولینس سروس اور پہلی کلینک کا قیام علیم آباد ملیر میں ہوا، دوسری کلینک سعود آباد پولیس چوکی کے مقام پر قائم کی گئی۔ یہاں ملیر سعود آباد میں تقریباً 20 سال سے رہائش پذیر ہوں، اور یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام جو کلینک ہیں اور ان کی خدمات ہیں میڈیکل کے شعبے میں وہ بہت اچھی ہیں، اور آج کل کے دور میں خاص طور پہ جب میڈیکل کی سہولیات بہت مہنگی ہو گئی ہیں اور بہت پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں، تو ان کی کاوشیں جو ہیں بہت اچھی ہیں، عوام کے لیے سستی ہیں اور بہت اچھی خدمات ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو یہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے تحت ہاسپٹل کلینک جو چل رہے ہیں، ان کی سروسز سے ہم بہت مطمئن ہیں، اور ایک زمانے سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے بچوں کا، ہمارا سب کا علاج ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم ان سے بہت زیادہ مطمئن ہیں، بہت سیٹسفائی ہوئے ہیں، اور اللہ کرے ان کی اس کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اچھے ہیں، ہمارا علاج اچھا ہوتا ہے۔ 1985 میں میت بس سروس کی سہولت کو بھی عوام تک پہنچانا شروع کر دیا گیا۔ پاک کوثر ٹاؤن کھوکھرا پارک نمبر 2 پر عمارت خرید کر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا دفتر منتقل کر دیا گیا، اور تمام سہولیات بامے ایمبولینس سروس کو بھی منتقل کر دیا گیا۔ ان تمام امور کو بام منزل پر پہنچانے کا سہرا سرپرست اعلیٰ جناب حاجی محمد حنیف طیب صاحب، جن کی کاوشیں اس ادارے کے لیے لائق تحسین ہے کہ سر ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد حنیف طیب کو تمغہ امتیاز سے اعزاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ المصطفیٰ کے کام سے پہلے ATI کے کاموں کے دوران مالی مشکلات بہت ہوتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ توکل پر کام چلاتے رہے۔ ایک چھوٹا رسالہ چھپوانا اس زمانے میں آزمائش کا کام تھا، ہمت سے، استقامت سے، اور اب بھی مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو المصطفیٰ میں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، مثلا اویس آفاقی صاحب تو کسی سے 40 سال کا، کسی سے 45 سال کا، کسی سے 50 سال کا تعلق میرا ہے۔ میری اپنی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جو حکم نبی ہے اس کے مطابق
ताल्लुकात अपने तौर पर न तोड़ने पाएँ, हमें ताल्लुकात बरकरार रखना चाहिए और उसके लिए अगर सब्र आज़मा लम्हों से गुज़रना पड़े तो सब्र भी करना चाहिए, लेकिन आज़माइश और मुश्किलात का अंजाम बिल आखिर कामयाबी की शक्ल में होता है और हो रहा है कि वो अल-मुस्तफ़ा जो एक पाकिस्तान से कराची से बनी और मुनीर का उसके अंदर बुनियादी रोल था, शाह फैसल का बुनियादी रोल था, गुलशन इकबाल का बुनियादी रोल था, अब कराची के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और दुनिया के 21 मुल्कों में अल-मुस्तफ़ा काम कर रही है, तो हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। दौरे हाजिर में इस इदारे में बीमारी से बचाव से मुतालिक शऊर और आगाही को बेदार करने के लिए सेमिनार मुनक्किद किए जाते हैं और जो शोबे कायम हैं इनमें ज़च्चा बच्चा के 12 बेड लगे हुए हैं। अस्पताल की सहूलत 24 घंटे हर शख्स के लिए है। OPD रोज़ाना होती है। डायग्नोस्टिक सर्विस, कंसल्टेंट क्लिनिक, फिजियोथेरापी की सहूलत, एक्सरे की सहूलत के साथ तकरीबन हर मरीज़ की देखभाल पर ख़ास तवज्जो और चेकअप किया जाता है। थैलेसीमिया, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और गुर्दों के मरीज़ों का इलाज, कटे होंठ, कटे तालू की सर्जरी, कैंसर और पोलियो के अलावा दीगर मोहलिक बीमारियों से लाखों मरीज़ शिफायाब होते हैं। I am Dr. Anwar. I have been working in this hospital since the last 10 years. ICL, I daily attend to OPD for 3 days a week, and I see a lot of cases come across me like scabies, infectious disease are most common here. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर राबिया और इस अदारे से मैं 9 ईयर्स से वाबस्ता हूँ और बहुत अच्छा अदारा है। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग ही आफ्टर स्टडी यहाँ से है और यहाँ के ट्रस्टी मिस्टर अवैस सफाकी साहब, ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सन और बहुत अच्छे नाइस कोऑपरेटिव पोलाइट पर्सन हैं और बहुत ही अच्छा अदारा। हर किस्म के फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं पेशेंट्स की सहूलत के लिए, पेशेंट्स के बेनिफिट्स के लिए। पेशेंट्स को सही देखा जाता है और तमाम डॉक्टर्स यहाँ के बड़ी केयर के साथ और हर तरह से मैनेज करते हुए पेशेंट को चेक करते हैं। मेरा नाम खुर्रम फराज है और मैं यहाँ वैक्सीनेटर के तौर पर ड्यूटी सर एग्जाम देता हूँ और गुज़िश्ता 2.5 महीने से मैं यहाँ पे पोस्ट हूँ और बच्चों की वैक्सीनेशन कर रहा हूँ। इसमें ख़वातीन भी आती हैं जो प्रेगनेंट होती हैं और CB वगैरह होती हैं, तो हम उनकी भी वैक्सीनेशन करते हैं। तो मेरे पास यहाँ गायनी ऑप्स के पेशेंट्स आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सारी सहूलियात हैं यहाँ पर, कोई हॉस्पिटल में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हॉस्पिटल वाले भी बहुत कोऑपरेटिव हैं हमसे, स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ का, तो कोई ऐसा मुझे किसी भी चीज़ की यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस इदारे से यानी कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से तकरीबन पिछले 10 साल से वाबस्ता हूँ और मैं यहाँ पे एज आ सोनोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। तो वैसे यहाँ पे हर तरह के पेशेंट हम डील करते हैं, होल एब्डोमेन, FWB, हर तरह के पेशेंट आते हैं स्कैनिंग के लिए। और इस इदारे के जो ट्रस्टी हैं अवैस भाई सफाकी साहब जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे और शफीक इंसान हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बल्कि सारा ही स्टाफ बहुत अच्छा है। हम लोग यहाँ पे एक फैमिली की तरह से काम कर रहे हैं। मलिक शाह के ज़ेरे इत्माम रोटरी क्लब ऑफ कारसाज कराची के ताउन से हर साल रमज़ान मुबारक में मुफ्त रोटिये के ऑपरेशन किए जाते हैं और फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद भी किया जाता है। मुख्तलिफ कौमी और मजहबी अयाम के मौके पर स्कूलों के तलबा और तालिबात के दरमियान मुकाबला हिफ्ज़ कुरान, नात रसूल मकबूल, कौमी मिली नग़मे, टैबलो, तकारीरी मुकाबले और मुबाहिसे का इनेकाद भी करती है। गर्ज दीन और दुनिया की भलाई के लिए जो भी कर सकते हैं वो अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर सरपरस्ती करके उनकी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरा नाम शाहिना परवीन है। मैं बतौर टीचर मैं यहाँ अल-मुस्तफ़ा इंडस्ट्रियल होम में लड़कियों को तरबियत दे रही हूँ सिलाई कढ़ाई की। यहाँ सिलाई कढ़ाई और मेहंदी है, ब्यूटिशियन का कोर्स भी है और धनक के काम, मुख्तलिफ जो लड़कियों के काम है ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं।
यहाँ हमारा सेंटर तो बहुत पुराना है, यहाँ तो इतनी लड़कियाँ सीख के जा चुकी हैं कि अब मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर हमारे इस एरिया से दूर दूर से भी लड़कियाँ आई हैं। ये आज वो वक्त आ गया कि वो लड़कियाँ अपने सेंटर चला रही हैं, वो अपने सेंटर चला रही हैं, वहाँ लड़कियों को तरबियत दे रही हैं। उन्होंने यहाँ सीखा और आज वो लड़कियां आज अपने बच्चों को भी ला रही हैं और उनकी भतीजी भांजियाँ भी आकर हमारे सेंटर में सीख रही हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने ज़ाहिर है इस बात को समझा जब भी उन्होंने ये इदारा कायम किया कि जहाँ जो कि हमारे माशरे की ख़वातीन के लिए उन्होंने एक बहुत बेहतर काम किया है इस तरह का इदारा कायम करके। मोहम्मद अवैस आफाकी की शख्सियत किसी ज़ाती तारुफ के मोहताज नहीं, जो मलीर की आवाम का सरमाया ही नहीं बल्कि एक सायादार दरख्त की मानी है। आए इनसे इस इदारे के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी हाजी हनीफ तैयब साहब के मशवरे से हमारे साथ शाहिद कादरी, एजाज़ अहमद, शेख अब्दुल रशीद साहब, शकील अहमद सिद्दीकी, नजमुल हसन नजमी, ज़ुबैर इसाक़, शकील अहमद राही, सग़ीर अंजुम और दीगर उस वक़्त के सर्कल अब्बास, इन लोगों ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया। उस वक़्त शुरू में फ़ंड लेना एक बड़ी दुश्वारी का काम था, क्योंकि उस वक़्त हमारी कारकर्दगी कुछ नहीं थी। उस वक़्त इन लोगों ने मिलकर हमारे साथ ताउन किया और लोगों से फ़ंड जमा किए, जिससे हमने मैयत गाड़ी ख़रीद कर अपने काम का आगाज़ किया। अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर मलीर में सबसे पहले इस सेंटर ने का क़याम अमल में आया। सऊदाबाद जिना स्क्वायर 2 क्लिनिक भी 1984 में कायम की गई और इस तरह मसलसल मलीर में इसका काम बढ़ता चला गया। और अल मुस्तफ़ा इंडस्ट्रियल होम जो तकरीबन 1987 में क़याम अमल में आया, और इसके अलावा शोबा खिदमत खल्क, जिसके ज़रिए लोगों की यतीम बेवा और मसाकिन की राशन के ज़रिए माली इमदाद के ज़रिए इमदाद की जाती है। इंशाअल्लाह ताला मलीर के इस मेडिकल सेंटर को बहुत जल्द नए सिरे से इसकी तामीरात का आगाज़ होगा। अभी जो हमें सर दर्द ज़रूरत है, कार्डियो यानी दिल के अमराज के डॉक्टर्स के लिए शोबा कायम करना है। हमारी तमाम लोगों से अपील है कि अल मुस्तफ़ा मेडिकल सेंटर से हर तरीके से ताउन कीजिए, ताकि जो शोबाजात अभी नहीं चल पा रहे उन शोबाजात को हम मज़ीद उस पर काम कर सकें। मेरी मुखय्यर अज़ा से इल्तिमास है, इस रमज़ान मुबारक के मौके पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से ज़कात, फ़ितरा, अतियात और सदक़ात के ज़रिए ताउन करें, ताकि बिला इम्तियाज़ और रंगो नस्ल दुखी इंसानियत की खिदमत की जा सके। हमारा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा और बैंक अकाउंट नंबर होगा। अज़राए करम इस नंबर पे हमसे मज़ीद मालूमात हासिल करें और बैंक अकाउंट के ज़रिए बैंक में ये सदक़ात, अतियात और खैरात जमा कराई जा सकती हैं।